Hello students, how are you doing? Let's move to the numerical portion of the chapter motion. The first question is written on the board. The question is that a tortoise moves the distance of 100 meter in 15 minutes. Calculate the average speed of tortoise in किलोमीटर पर आवर. यानी एक टॉर्टोइज है जो 100 मीटर चलता है डिस्टेंस 15 मिनट में. तो टोटल डिस्टेंस covered is 100 meter. Okay, and total time taken is 15 minute, and answer is asked in kilometer per hour, so we should change this meter into kilometer per hour and this 15 minute into hour. So meter should be changed into kilometer, so this will be 100 upon 1000. This will be kilometer now, and this is minute, and we need to change into hour, so this will be 15 upon 60 hour. Okay, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड. So the average speed will equal to total distance upon total time. Total distance upon total time. So total time is 15 upon 60 and total distance is 100 upon 1000. Okay, so the cross multiply will be there. 100 upon 15 into 60 upon 1000. And this will be 4 upon 10, and we can multiply 0.4. The answer is 0.4 kilometer per hour. Okay, answer is 0.4 kilometer per hour. Note it down. Okay, now the second question. A bus traveling at 20 meter per second is subjected to a steady deceleration of 5 meter per second. एक बस है जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और उसमें हमने डी एक्सेलरेशन किया, मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया -5 मीटर पर सेकेंड का. तो कितनी देर में कार जो है वो रुक जाती है? ठीक है, कितनी देर में रुक जाती है? तो देखो, जहां कम टू रेस्ट, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 0. इनिशियली कितने से चल रही थी? 20 मीटर पर सेकेंड से, तो u इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनली v इज इक्वल टू 0. t we need to calculate acceleration. हमें दिया हुआ ना डी एक्सेलरेशन दिया जाए तो हमेशा वैल्यू किस में रखनी है? माइनस में. डी एक्सेलरेशन दिया जाए तो हमेशा वैल्यू माइनस में, तो दिस विल बी 5 minus meter per second square. We need to calculate the value of t. We can use first equation of motion. V is equal to u plus at. So v is equal to 0, u is given 20 plus a is given -5 into t. We need to calculate. So this is 0 is equal to 20 minus 5t. So 20 or 5t can come this side. This will be equal to 20 and t is equal to 4 seconds. Means after 4 seconds car will stop. After 4 seconds, sorry, bus will come to rest. Okay, note down. Okay, the new question is find the initial velocity of a car. Initial velocity we need to calculate which is stopped in 10 seconds.
which is stopped means final velocity 0 हो जाएगी कितनी देर बाद, 10 सेकंड बाद. The retardation due to brakes, retardation मैंने बताया था negative acceleration, so a is minus 2.5 meter per second square. We need to calculate the initial velocity. Sorry, so we can find out the initial velocity. V is equal to u plus at. V is 0, u we need to calculate. A is minus 2.5 and t is 10 second. So this will be 0 is equal to u minus 25. This will be 25. So u is equal to 25 meter per second. So initial velocity कितनी होगी, 25 meter per second. Note down. Okay, now this question, describe the motion of the body which is accelerating at a constant rate of 10 meter per second. Means acceleration is given 10 meter per second square. Acceleration की पहचान यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन दिया है. If the body starts from rest means initially it was at rest, how much distance will it cover in 2 seconds? Means how much distance we need to calculate the distance in 2 seconds. यानी 2 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. So we have the formula of equation v is equal to u plus at. In this formula distance cannot be calculated because s is not given. S is displacement or distance, whatever you like. This is not given in the formula, so we cannot use this formula. Second formula is s is equal to ut plus half at square. Let's check, can we use it? Ut s we need to calculate, s is given, so we can use this equation, but we have to check whether we have all the terms given in the equation. So let's check. U is given, yes, t is given, a is given, so we can use. Okay, so equation s is equal to ut plus half at square. So we should write from second equation of motion. Second equation of motion. We are using here the second equation. So second equation, yes, we need to calculate u is 0 after t and 2 seconds plus half. A is given 10, t is given 2 square means 2 into 2. So this will be 2. So 2 into 0 will be 0. This will be 20. So the answer will be 20 meter. Means after 2 seconds it will cover 20 meter distance. In 2 seconds body will cover 20 meter distance. 20 meter distance. Okay, so write down. Okay, now in this question a motorcycle is moving with a speed of 5 meter per second, is subjected to an acceleration of 0.2 meter per second. यानी एक मोटरसाइकिल है जो इनिशियली कितनी स्पीड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड. इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. नाउ बी एक्सेलरेटेड मींस हमने एक्सेलरेटर बढ़ाया और उसकी रेट कितनी कर दी, 0.2 मीटर पर सेकंड. द एक्सेलरेशन इज गिवन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकंड. मींस आफ्टर 10 सेकंड फाइनल स्पीड, व्हाट विल बी द फाइनल स्पीड, एंड आल्सो डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम. अब 10 सेकंड में जब उसकी स्पीड बढ़ी है तो डिस्टेंस भी कुछ डेफिनेटली ट्रेवल की होगी. तो v and s we need to calculate. So let's calculate v first. From equation of motion 1, from equation of motion first, v is equal to u plus at. here v we need to calculate. V, u is given 5 into a is given 0.2 and t is given 10. So this will be 5 plus 2. 0.2 into 10, this will be 2 and the answer will be 7 meter per second is the final velocity. Now we need to calculate the distance covered in this टाइम इंटरवल. यानी कि जब स्पीड हमने बढ़ाई होगी तो जाहिर सी बात है गाड़ी फुल चली भी तो होगी.
तो डिस्टेंस कवर्ड हमें पता करनी है। तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए फॉर्मूला फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, हम क्या करते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Now what is the second equation of motion? This is S is equal to ut plus half at square. Okay, now let's have the values. S is equal to u is given 5 into t is 10 plus half, a is the acceleration sorry 0.2 into time is 10 square. Okay, so we can write it 10 into 10. So we can do this. This will be 2 5s are 10. The answer will be 5 into 10. This will be 50, and now 50 to the 10. This will be 10, and the answer will be 60 meter. कितनी डिस्टेंस होगी? 60 मीटर. Note it down. Okay, have a look on this question. A bus is running at a speed of 18 km per hour. एक बस है, इनिशियली कितनी स्पीड से चल रही है? 18 km per hour. Is stopped in 2.5 second. Time is 2.5 second. Applying brakes. By applying brakes, ब्रेक लगा के रोक दी गई, तो यानी फाइनली बस रुक गई. V is equal to 0 final velocity. Calculate the retardation. Retardation means negative acceleration कितना होगा. So we need to calculate the value of a, and it must be in minus. So let's solve the question. तो हमें पहले तो ये देखो सेकंड दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया है. तो एक चीज याद रखनी है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो जस्ट मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर इनटू 5/18. ये याद रखनी है चीज हमेशा. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5/18 से. और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो किससे कर देंगे? मीटर पर सेकंड इनटू 18/5. 18/5 ये याद रखना है आपको. ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा. अब हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू v इज इक्वल टू, पहले तो हम इसे सॉरी चेंज कर लेते हैं, इसे चेंज कर लेते हैं. u इज इक्वल टू दिया हुआ है 18 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया ये ना. अब लगा सकते हैं फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at. देखो सारा यूनिट सिस्टम हमारा एक ही टाइप का होना चाहिए. किलोमीटर का मीटर होना चाहिए, अगर सब मीटर में दिया है तो सब मीटर में होना चाहिए, सेकंड में दिया है तो सेकंड में होना चाहिए. ठीक है, यूनिट सिस्टम सेम होना चाहिए बिल्कुल. इनिशियली मैंने आपको यूनिट सिस्टम समझाया था. एमकेएस सिस्टम यानी कि अगर आपका कोई भी एक चीज मीटर में दी है तो बाकी यूनिट सेकंड में होनी चाहिए, आवर में नहीं होनी चाहिए. क्योंकि एमकेएस सिस्टम में क्या होता है? मीटर, किलो एंड सेकंड. ठीक है, तो आपकी जो यूनिट सिस्टम है वो एक ही सिस्टम में होने चाहिए. यूनिट सारी की सारी एक ही सिस्टम में होनी चाहिए. v is equal to u plus at. v we need to calculate, no sorry, v is given 0. finally जो हमारी गाड़ी है वो रुक गई. initial velocity is 10 meter per second plus acceleration we need to calculate. The time is 2.5. now this is 10 plus here, so this will come, this will be minus 10, and a is equal to 2.5. so a is equal to minus 10/2.5. so this decimal, if we remove this, will a 0 will increase in the numerator. now this will minus 4 meter per second square. 4 means retardation आ गया. ये माइनस की वैल्यू क्या बता रही है? रिटार्डेशन आया. दिस माइनस tells us that the value is decreasing, speed is decreasing. okay, note down. now in this question we need to draw velocity time graph. हमें एक velocity time graph draw करना है. तो this is velocity axis, this is time axis. this is your velocity axis and this is time axis. The condition is given, a car accelerates uniformly from rest for 5 seconds. 5 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है.
ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या बताती है, एक्सेलरेशन बताती है। तो नो डाउट हमें एक्सेलरेशन बनाना है, तो उससे पहले हम टाइम इंटर बना लेते हैं। तो दिस इज इनिशियल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and so on. You can write here time. This is time t. क्वेश्चन कह रहा है कि कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है 5 सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहां तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना है, यहां तक क्या होना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं 5 सेकंड तक। तो दिस इज 5 सेकंड। तो ये हमारा क्या है, 5 सेकंड है ना सब, दिस इज 5 सेकंड। अब यहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना है हमारा, तो हमने क्या किया, यहाँ से ये इस तरीके से मिला दिया इसे, तो यहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा हो गया। अब ये कह रहे हैं कि when it travels at a steady velocity of 5 सेकंड, then इसके बाद क्या होता है, ये 5 सेकंड के लिए स्टीडी वेलोसिटी से, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी गेन हुई है, ठीक है, जीरो से जीरो वेलोसिटी से बढ़ती गई 5 सेकंड तक बढ़ती रही। उसके बाद जो वेलोसिटी यहाँ पे उसने गेन की, उसी वेलोसिटी से अगले 5 सेकंड वो चला, तो अगले 5 सेकंड कितने हो गए, 10 पे होगा अगला 5 सेकंड। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर सेम वेलोसिटी से चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 सेकंड पर आ जाएंगे। वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, okay, so the graph will be like this, okay. आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले 5 सेकंड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होती है, ऐसी तो लाइन बनती है, स्लोप, और फिर क्या है, स्टीडी वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी कहीं बदल रही है, यहाँ पे वेलोसिटी बदल रही है। यहाँ पे इनिशियली u 0 थी, यहाँ बढ़ गई वेलोसिटी, बढ़ गई है ना, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी सेम रह रही है। छठे सेकंड भी वेलोसिटी यही है, 7वें सेकंड भी यही वेलोसिटी, 8वें सेकंड, 9 10 हर सेकंड वेलोसिटी सेम है। तो नोट डाउन द क्वेश्चन। Okay, now new question. A car acquires a velocity of 72 km per hour in 10 seconds starting from rest. यानी u is equal to कितना दिया है, 0, और v is equal to कितना दिया है, 72 km per hour, and time is given in 10 seconds. देखो अब टाइम सेकंड में दिया है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी है, तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले बता चुका हूँ मैं कैसे कन्वर्ट करना है उन लोगों को। इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा, इनटू क्या कर दें इसको, 5/18 से कर दें मल्टीप्लाई, तो 18 4 द 20 मीटर पर सेकंड हो गया ना। अब हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो ये यही कैलकुलेट हो सकता है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, वैल्यू पुट करें तो v इज इक्वल टू 20, u is 0 plus a, we need to calculate, t is 10, so this will be 20 is equal to a into 10, 10 twos are, so a is equal to 2 meter per second square. So this is the acceleration. Now average velocity. So I will tell you here a new formula of average velocity. Generally average velocity is total displacement upon net displacement upon total time, na? But here we don't have such kind of things. So a new formula, always remember, average velocity का एक और फॉर्मूला होता है जो याद रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी एवरेज का जो फॉर्मूला दूसरा है वो क्या है, u प्लस v अपॉन 2,
तो फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। तो u कितना है 0, v कितना है 20/2, तो दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। एंड डिस्टेंस इन सी पार्ट s इज इक्वल टू, हम फार्मूला डिस्टेंस का क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही तो लगा सकते हैं क्योंकि v इज इक्वल टू u प्लस at से तो डिस्टेंस पता नहीं चलेगी क्योंकि s तो दिया नहीं होता इस फार्मूले में। तो वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ सेकंड फार्मूला। सो नाउ this is ut plus half at square and we have all the values. U is 0 into t is given 10, 1/2. Now a is 2 meter per second and t is 10 into 10. So this will be 2 is divided by 2 and this will be 0 plus 10 100. This will be 100 meter. Distance traveled will be 100 meter. Okay, note it down. Okay, now the next question is drive equations of motion mathematically. In the last lecture we derived the formula according to the graph. Now this question is asked equations, solve equations according to mathematics, common mathematics. So let's start. First equation of motion. Okay, let's start with the first equation of motion. So first equation of motion start करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, suppose a body starts moving with the initial velocity u. After time t, it attains the final velocity v. Then अब जब वेलोसिटी चेंज हुई है तो क्या हो गया होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया होगा। देन एक्सेलरेशन will equal to change in velocity upon time, यही तो होगा। तो एक्सेलरेशन होता है a, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये एनालिसिस भी आपको बताया भी था एक दिन। तो a is equal to this will be final velocity v minus u upon t, this cross multiply, at is equal to v minus u, or you can write it as v is equal to u plus at. Okay, this is the mathematical method. Now for second equation in time interval t, body covers s distance। कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, s डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, s डिस्टेंस। तो s डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें अब। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आप इसे कहो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब हम यहाँ पे भी क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
एस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिया क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग। लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन के बीच में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से डिनोट किया है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप कुछ भी यहाँ पे नोट कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन फार्मूला चूंकि एवरेज वेलोसिटी का है तो उसमें एवरेज वेलोसिटी में क्या आती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हमें है, नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, एस के। ये किसके बराबर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें वेलोसिटी एवरेज की किससे, टाइम से। एवरेज वेलोसिटी की मल्टीप्लाई टाइम से कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल आएगा ना। तो बस s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था u प्लस v अपॉन 2 होता है इनटू t। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं मिटा रहा हूं, आप इसे उतार लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा स्क्रीन को अभी और नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर अब देखो इसकी, अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है ना। तो ये v की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लो। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2, सो s विल इक्वल टू u प्लस v की जगह क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी हो जाएगा ना, अपॉन 2 इंटू टी। इसे सिंप्लीफाई कर लें, अंदर इसकी मल्टीप्लाई पहले से सिंप्लीफाई कर लें, दिस विल बी u प्लस u, 2u हो गया, एंड ए टी इंटू टी अपॉन 2 एंड मोर सिंप्लीफाई अगर और करें तो ये कितना हो जाएगा, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, किसके बराबर है ये, s के बराबर हो गया ना। तो अब s इज इक्वल टू, इसे हम क्या करते हैं, दोनों को इसके ऐसे लिख लें, 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस विल बी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हमारी ड्राइव होगी। किसी को कोई डाउट, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, आपको कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्यों रखी सर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप कुछ भी रख दीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है। मैंने आपको बताया था जब मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आपको समझा रहा था। ओके, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आई विल सॉल्व द थर्ड इक्वेशन। मैं थर्ड इक्वेशन सॉल्व करता हूं। अब हमें सॉल्व करनी है थर्ड इक्वेशन। अब ये मैथमेटिक्स लग रही है प्योर, तो अब की बार फिर से s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी s इज इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम वैल्यू रखी थी। तो ये क्या था, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब की बार बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। इस वाली इक्वेशन जो 2 थी हम लोगों ने मानी थी, आप लोगों की कॉपी में होगी, इक्वेशन 2 क्या थी, ये वाली। ठीक है, इसमें वैल्यू t की पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या होगी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, तो दिस विल बी v माइनस u बराबर ए टी के हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या होगा, v माइनस u अपॉन a नीचे आ जाएगा, हो जाएगा ना, ये इसे अंदर ले आओ, बराबर ए टी है, t की वैल्यू निकालनी है तो a को नीचे भेज दिया। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी है, v माइनस u अपॉन a, तो दिस विल बी s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2, और ये कितनी है, v माइनस u अपॉन a। अब देखो ये मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी, a माइनस बी,
तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो दिस विल बी, इसे आप लिख लें, मैं इसे इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये इधर लिख दे रहा हूँ मैं, तो दिस विल बी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये मैथमेटिकली सॉल्व किया है हमने इक्वेशन को, इससे पहले ग्राफिकली किया था, ठीक है। नोट इट डाउन फॉर टुडे, इट्स इनफ। If you have any query, you can ask to me. In the next lecture, we will solve numericals, and we will try to solve at least 30 to 40 numericals of every chapter, so that your concept will very clear. Okay? Thank you, students.